السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSO کے اس پروگرام میں پہلی بار میری حاضری ہو رہی ہے اور یقین مانیں کہ ہم میں سے ہر شخص اس پروگرام میں آ کر خوشی محسوس کر رہا ہے۔ جتنی خوشی آپ سب کو مل کر ہے مجھے تنہا اتنی خوشی، کیونکہ میں انڈیا میں ہوتا نہیں ہوں۔ بہت کم ایسے مواقع اپنے لوگوں کے درمیان آ کر مجھے ملتے ہیں۔ میں جو وہاں بیٹھ کر سوچا کرتا ہوں یہ کام کو اس طرح سے ہو، اس انداز سے ہو، وہ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اس پروگرام میں آنے کا خاص ذریعہ میرے بہت ہی کرم فرما اور جو اس MSO کے فاؤنڈر ممبر کے حیثیت سے جن کو متعارف ابھی کرایا گیا، بہت ہی بہترین عالم دین اور ایک شاندار نقطہ رس اور نقطہ فہم شاعر عالی جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سرور صاحب اللہ مصباحی، ان کی شخصیت اور ان کی ذات یہ ذریعہ بنی مجھے یہاں تک لانے میں۔ حضرت کو لکھنؤ آنا تھا، حضرت نے میرے پاس فون کیا کہ میں لکھنؤ آ رہا ہوں، کہیں ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں خود لکھنؤ آ رہا ہوں۔ تو جب انہوں نے سنا کہ میں بھی لکھنؤ کی خواہش رکھتا ہوں اور ملاقات کی، تو انہوں نے پھر اپنا مقصد بتایا کہ ہم لوگ ایک پروگرام MSO یعنی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، اس کے تحت ہم لوگ کافی دن سے کبھی کبھی پروگرام کرتے ہیں، اگر اس میں آپ آ جائیں تو اچھی بات ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی، فوراً چل پڑا اور رات میں اپنے دوست کے وہاں تھا تو صبح ہی ماشاءاللہ حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری حاضری کو قبول کرے۔ اور آگے ہی میں نے پہلا شعر لکھا آپ سب کو دیکھ کر کہ دکھ درد مٹانے میں نہ تاخیر کرے گی، دکھ درد مٹانے میں نہ تاخیر کرے گی، کردار سے اسلام کو تحریر کرے گی۔ دکھ درد مٹانے میں گویا یہ ہمارا اپنا ایک نظریہ بھی بن گیا یہاں سے، اور ہم لوگ اس مقصد اور اس مشن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ دکھ درد مٹانے میں نہ تاخیر کریں گے، کردار سے اسلام کو تحریر کریں گے۔ اور جو لوگ حوادث کے اندھیروں میں گرے ہیں، جو لوگ حوادث کے یعنی تمام طرح کے حادثے ہو رہے ہیں تریپورہ میں کہ کیا ہوا، جو لوگ حوادث کے اندھیروں میں گرے ہیں، ہم ان کی شب درد میں تدبیر کریں گے، ہم ان کی شب درد میں تدبیر کریں گے۔ دیکھیے ماحول جب سازگار ہو اور ہر طرف ہریالی اور شادابی ہو، پھر آپ مسرور ہوں اور اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، تب اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب مخالفتیں ہوں، دشواریاں ہوں، پریشانیاں ہوں، ہر طرف صحرا ہی صحرا نظر آئے، ہر طرف ریت ہی ریت نظر آئے، تو وہاں پر پھول کھلانے میں جو مزہ ہے، جو لذت ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اصل لطف تبھی آتا ہے، انسان لڑتا ہے، کبھی ہارتا ہے، کبھی اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور پھر جب وہ کسی خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی عادت سی بن جاتی ہے۔ مخالفتیں ہوتی ہیں، پھر بھی وہ سینہ تان کے کھڑا ہوا رہتا ہے، کیونکہ وہ لڑ کے آیا ہے، کیونکہ وہ مشکلات برداشت کر کے آیا ہے۔ میں ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ سکھا دیتی ہیں چلنا ٹھوکریں بھی راہگیروں کو، سکھا دیتی ہیں چلنا ٹھوکریں بھی راہگیروں کو، کوئی رستہ سدا دشوار ہو ایسا نہیں ہوتا۔ اور ہم تو اس رسول کرام وقار کے ماننے والے اور چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے ہمارا لباس کوئی بھی ہو، میں کرتا صدری ٹوپی لگا کر یہاں پر آیا ہوں، آپ میں سے کچھ دوسرے لباس میں بھی آئے ہیں،
لیکن ہم لوگ یہ نہ بولیں کہ ہمارے سینوں میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے یہ مسلمان کا ہے. کسی بھی فیلڈ میں ہم ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، جامعات میں ہوں، مدارس میں ہوں، خانقاہوں میں ہوں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن ہمارے سینوں میں جو دل دھڑک رہا ہے یہ مسلمان کا دل ہے. تو اس لیے ہم کو اس بنیاد پر ایک ہو کر کے رہنا ہے. ہم اکیلے کچھ نہیں ہے، تنہا کتنے بھی طاقتور ہو لیکن ہم تنہا کچھ نہیں ہے. اور جب یہاں آپ سب کو دیکھ لیا ساتھ میں آ گئے تو ہم طاقت محسوس کر رہے ہیں یا نہیں محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے میں عرب کے سرزمین پر تقریباً 18 سال سے ہوں. ماشاء اللہ مولانا عارف القادری واحدی میرے سامنے موجود ہیں. جب سے آیا ہوں کئی وعدے ان کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں، کہاں ملاقات ہوگی، کب ہوگی. اور حضرت مولانا شاہد رضا مصباحی صاحب سے تو ماشاء اللہ دیکھیے یہ لوگ بھی تلاش لیتے ہیں اپنی مزاج کے لوگوں کو. میں مسقط میں بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرے دل کے بے انتہا قریب حضرت ہے. ڈاکٹر سرور مصباحی صاحب بھی مدتوں سے ہمارے دل کے قریب، کیونکہ ہمارا مزاج ایک ہے. قوم میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ان مشکلوں کو برداشت کر کے خود بھی آگے بڑھیں گے اور اپنی پوری جماعت کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو مدتوں سے اس سے بھی وعدہ ہوتا رہا. ابھی پچھلے ایک ہفتہ پہلے جامعہ اشرفیہ میں ملاقات کے لیے 28 تاریخ کو کہ وہاں آیا جائے. پھر وہاں سے کچھ معاملہ ہوا، اساتذہ بلرام پور میں ہماری ملاقات ہوئی، وہاں نہیں ہوئی. پھر دیکھیے بغیر کسی اس کے ابھی رابطہ پہلی بار میں یہاں دیکھا گیا. اور ماں عارف القادری صاحب کو بھی یہاں پہلی بار دیکھا ہوں. ڈاکٹر شجاعت صاحب سے ماشاء اللہ ملاقات ہوگی. حضرت سے یہ سب بڑی مسرتوں کا معاملہ ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ملاقات ہماری یہاں ہوئی ہے یہ تاعمر ہم اس ملاقات کو نہ بھولیں گے اور نہ اس ملاقات کو کم ہونے دیں گے انشاءاللہ. اور رشتہ ہمارا بڑھتا چلے گا. آج ہم جس منزل پہ ہیں نا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ بھی آگے بڑھیں گے، میں بھی آگے بڑھوں گا. آج اگر ہم کمزور ہیں، پیسے ہمارے پاس نہیں تو کل ہمارے پاس پیسے بھی آئیں گے. آج ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کچھ تعاون کیجیے، ایم ایس او کا کچھ تعاون کیجیے، انشاءاللہ ہم خود ایک مقام ایسا آئے گا کہ خود تعاون کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے. تو اگر دیکھا جائے تو اتنے لوگ بھی اس آرگنائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے مستقبل میں کافی ہوں گے انشاءاللہ. بس ایک اس سے جڑے رہیں، دور نہ ہٹیں، اپنے ذہن و فکر کو ہم اس کے ساتھ لگائے دیں. یہ جو مفاد ایم ایس او کے ساتھ وابستہ ہے ہمارے اپنے ذاتی مفاد سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ کامیاب ہوگا آرگنائزیشن تو ہم کامیاب ہوں گے، ہماری ذات کامیاب ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس نظریے کے تحت آگے بڑھنا ہے. زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کر رہو، اس زمین کی پستیوں میں آزما بن کر رہو. حسن صورت اگر نہیں نہ صحیح، حسن صورت اگر نہیں نہ صحیح، سیرت بے مثال پیدا کر، سیرت بے مثال پیدا کر. کیسے کیسے کم صورت اور بدصورت لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا ان کے نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے تخلیق کرتے ہوئے نظر آتے. جیسے بال وہ رکھتے ہیں دنیا ویسے بال رکھنا چاہتے ہیں، جیسے لباس وہ پہنتے ہیں دنیا ویسا لباس پہننا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ اپنی اگر کوئی کمزوری ہم محسوس بھی کر رہے ہیں تو اس کمزوری کو اپنی خوبی میں تبدیل کر دو. وہ کب ہوگا کہ جب ہم اپنے اندر ہنر پیدا کریں گے، جب ہم اپنے اندر کام کا ایک جذبہ پیدا کریں گے، آگے بڑھیں گے، ہر جگہ جائیں گے بغیر کسی شرمائے ہوئے ہم آگے جائیں گے. اکثر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، ادھر جائیں گے تو پتہ نہیں دیکھنے والے کیا کہیں گے، ہمارے گھر والے کیا کہیں گے. سب سے پہلی منزل تو یہی ہے پار کرنے کی. اس کو آپ پار کر گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی بھی ملے گی. اب دیکھیے عالم دین بھی ہے ڈاکٹر سرور صاحب اور عالم دین بھی ہے مفتی شاہد مصباحی صاحب، لیکن انہوں نے اپنے قدم کو کالجوں اور یونیورسٹیوں کی طرف بڑھایا. انہوں نے نہیں سوچا کہ آج ٹوپی والوں کو دیکھ کے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اس لباس کو دیکھ کے نہ جانے کیا کیا لوگ خیال کرتے ہیں. تو کبھی کبھی انسان تھوڑا قدم پیچھے ہٹا دیتا ہے، کالجوں میں نہ جایا جائے، ایسی جگہوں پر نہ جایا جائے. لیکن جب انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو آپ ان سے قریب ہوئے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمارے سینوں میں جو دل دھڑکتا ہوا ہے یہ ایک مسلمان کا دل. سبحان اللہ. اور اسی طرح سے جب ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور آپ میں سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مرغی ہوتی ہے، مرغی، اس کو چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں
जब बिल्कुल शुरुआती दौर में उसके अंदर से बच्चे निकलते हैं तो वो जल्दी खुले आसमान के नीचे नहीं लाती अपने बच्चों को, अंदर ही अंदर किसी छप्पर के नीचे, किसी छत के नीचे, किसी अपने छोटे से रहने के घर में। थोड़े से जब बड़े होने लगेंगे तो कभी कभार थोड़ी देर के लिए वो बाहर खुले आसमान के नीचे लाएंगे, लेकिन वो नजर रखेगी कहीं कोई कौवा, कोई चील, कोई चिड़िया जो शिकार करता हो कहीं आ ना जाए और बच्चों का शिकार न करे। नजर उसकी हमेशा इधर उधर रहती, और जरा सा कुछ हुआ तो फौरन खुद भी भागती और बच्चों को भी मुतनब्बे करती, उसके बच्चे भी फौरन दुबकते हैं। इस तरह उनकी बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है। अब अगर माँ कभी ना भी हो, तन्हा हो, तो बच्चे फौरन समझ जाते हैं कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। समझ जाते हैं या नहीं समझ जाते? हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। ये उसकी तरबियत, माँ की और पेरेंट्स के और बड़ों की तरबियत का नतीजा है। और यही हाल अगर आप देखो, ये जो मशीनों से बच्चे निकाले जाते हैं, आप आजमा के देख लें। आप 2 बच्चों को लाके यहाँ के बैठा दें साथ में करीब करीब, और कोई बिल्ली वगैरह वहां पे रख दें, बिल्ली एक का शिकार कर जाएगी, दूसरे को खबर भी नहीं होगी। आप बताइए ऐसा है या नहीं है? उसको पता ही नहीं कि किससे भागना है, किससे डरना है, किससे करीब होना है। तो हम सब यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए कि अपने अपने तजर्बात शेयर करें। हजरत डॉक्टर सरवर साहब अपनी जिंदगी में उन्होंने बड़े तजर्बात हासिल किए। हजरत जनाब डॉक्टर शुजात साहब, इन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े तजर्बात हासिल किए हैं। हम सब अलग अलग अपने अपने फील्ड में, जैसे हजरत कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कोई तजर्बा हमें हासिल है, तो जब हम यहाँ उसको शेयर करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि इस कौम में काम करने के लिए हमें किस जगह जाना है, किससे बचना है, क्या क्या दुश्वारी पेश आ सकती है। हम पहले ही से आगाह करेंगे, दुश्मन की जद में आने से पहले ही हमें पता होगा। इकट्ठा होने से यही एक फायदा होता है। और आज का जमाना ये है कि मोटरसाइकिल पर चलते हुए दोस्तियां होगी, एक दूसरे से दुआ सलाम हुआ, कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, दोस्तियां हुई, कुछ दोस्तियां बदल के घर में वो लेके आ गए, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा मामला होता है कि घर भी बर्बाद हो जाता है इन दोस्तों की। लेकिन माँ बाप हमेशा सिखाते हैं कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, किससे दोस्ती रखनी है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, कौन तुम्हारा दोस्त है। तो इसलिए यहाँ पर ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है। हमें जैसे फरमाया कि सेकंड राउंड में और भी मुदल्लल और अच्छी तरीके से इस पर गुफ्तगू होगी कि मीडिया किस किस अंदाज में पेश आ रहा है मुसलमानों के साथ। ये सब हम खुली आंखों से देख रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खुसूसी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस ऑर्गेनाइजेशन को खूब तरक्की अता फरमाए। मस्कत में गया था, हमारी जुबान यहाँ बोलने की जो है वो उर्दू ज़बान है। तो पहली परेशानी है कि हमने तारा जामिया अशरफिया ने इतना कुछ अता फरमा दिया था कि काफ़ी कुछ वहाँ बोलने लगा, लेकिन माहौल बिल्कुल अलग है। और आज का अरब पुराने अरब से बिल्कुल बदल चुका है। जो हमारे अकायद हैं, जिन अकायद की बुनियाद पर हम अपने आप को सही और सच्चा मुसलमान या आशिक रसूल कहते हैं, आज अरब कौम की हालत बिल्कुल बदली हुई है। वहां जाकर के अपने इन बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करना और करवाना बेइंतहा दुश्वार। और मुझे शुरू में ऐसा लग रहा था 4-6 महीने इब्तिदाई कि मैं यहाँ ठहर नहीं पाऊंगा। मेरे वालिदैन कहते नहीं बेटा ठहर जाओ, असातिज़ा कहते नहीं ठहर जाओ, लेकिन मैं ये जहन बना चुका था कि मैं इंडिया में काम करूँ। फिर धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह माहौल साजगार होता गया और आज 18 साल हो गए मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और ओमान का कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जो हमारे उस मरकज को, जैसे मरकज़ अहले सुन्नत नूरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, कोई ऐसा शहर नहीं कि वहाँ के सैकड़ों हजारों लोग उस जगह को जानते हैं। मैं ऑनलाइन बयान करता हूँ, तकरीबन 30,000 से ज्यादा वहाँ के लोग सुनते हैं उस बयान। 50,000 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझसे जुड़े हुए। कोई मौका आता है, मैं एक आवाज देता हूँ, मैसेज डालता हूँ, तो माशाल्लाह कई हजार लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। 800, 1,000 किलोमीटर दूर से सिर्फ जुमा पढ़ने के लिए लोग मेरे पास आते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में बेहतरीन गाड़ियां हैं, सड़कें हैं और पेट्रोल तो गया फ्री ही है। इस वक्त 16-17 रुपए वहां पर महंगा होकर गया, डबल रेट होकर के 16-17 रुपए पेट्रोल है और पहले 8-9 रुपए। और गाड़ियां भी एक से रोडें भी। तो एक हफ्ता
जो अपने अपने महलों में बेताब होते हैं कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ अपना माहौल हो, जहाँ अहले सुन्नत का माहौल हो, जहाँ दीनी बातें बताई जाए, दिल खोल कर हम कुछ पूछ सके। तो एक हफ्ता जब गुजरता है और जुमा आने वाला होता है तो वो लोग भरपूर तैयारी करते हैं और सुबह ही से निकल करके हमारी मस्जिद 10 बजे ही भर जाती है। 500-600 लोगों के अंदर बैठने की जगह ये 10 बजे ही हजरत भर जाती है और उसके बाद में बाहर शामियाना और टेंट साथ लगाया जाता है। और हाल ये होता है कि नमाज जुमा के बाद में फौरन सामने ही घर में जा नहीं पाता हूँ। असर तक लोग अपने मसाइल सवालात ये सब करते रहते हैं, फिर असर की नमाज पढ़ के फिर मैं पहुँचता हूँ। तो मैं बताने चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ से लौट आया होता, मैं चला आया होता, तो जाहिर सी बात है कि फिर वहाँ काम इस तरह का कैसे होता, मैं हिम्मत हार जाता। लेकिन जामिया अशरफिया हुज़ूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान का जो फैज़ है, वहाँ के बारे में किसी ने कहा जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर, जो अब यहाँ से उठा है वो सारे जहाँ पर बरसा है, जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसा। इसलिए हम मुसलमान हैं, हमारे आका की सीरत हमारे सामने है, कैसी कैसी मुश्किलात आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब उससे वाकिफ हैं। कैसी कैसी मुश्किलात हमारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की, कैसे कैसे मामलात झेले, फिर जो इस्लाम सारी दुनिया में फैला। तो आज हमारे सामने मुश्किलात हैं, लेकिन इन मुश्किलात को हम किसी इस अंदाज में नहीं ले रहे कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि हमलों को पार करते हुए, निसारों को तोड़ते हुए इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ 50 नजर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 100-200 कुछ दिनों में नजर आएंगे, फिर 1000-2000 होंगे, फिर इंशाअल्लाह इंडिया में हमारा एक नाम होगा, हमारा काम होगा, हम कोई आवाज़ बुलंद करेंगे। देखिए रोशन मुस्तकबिल, जब ये हजरत ऐलान करते थे कि भाई ट्विटर पर आओ, ट्विटर पर आओ, ट्विटर पर आओ, ट्रेंड चलाना है, तो बहुत से लोग हंसते थे, मैं खुद जानता हूँ। आज से साल भर पहले की बात है, ज्यादा दिन के बाद नहीं। लेकिन आज आलम ये हो गया है कि उसी ट्विटर के जरिए से जब ट्रेंड चलाया जाता है तो कभी 1 नंबर है, कभी 2 नंबर पे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ वैसे ही हमारी पॉपुलेशन, हमारी आबादी कम है, दूसरों के हाथ में सारे असबाब हैं, सारे जरिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेहमदी ताला मुख्तसर सी मुद्दत में ये कामयाबी हमें मिल गई है कि जब ट्रेन चलाते हैं तो उसकी आवाज दूर तक पहुंच जाती है, चाहे फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन सारी जगहों तक पहुंच जाएगा। अभी त्रिपुरा के मामले में भी यही हुआ, शुरू में कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज उठाई गई और बेहमदी ताला आवाज पहुंची। भले ही कुछ अपना नुकसान नहीं, कुछ हमारे लोगों को वारिस किया गया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इससे उनका कद घटेगा नहीं, बल्कि इससे उनका कद बढ़ेगा। खुद वो तजुर्बात हासिल करेंगे, जेलों में क्या होता है, किस अंदाज से मामलात होते हैं, फिर वो हमारे दरमियान आएंगे, फिर हमें वो बताएंगे कि किस किस तरह से अपनी तैयारी करना है। सुभान अल्लाह। और ये मुश्किलात हमारी तामीर के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, ये मुश्किलात हमें पीछे ढकेलने के लिए नहीं, बल्कि हमें आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं खुद भी, मैंने ये अहद कर चुका हूँ कि इंशाअल्लाह मैं MSO से सारी जिंदगी जुड़ा हुआ रहूँगा, और ऐसा ताउन होगा, चाहे पैसों की जरूरत होगी, खुद फिजिकली आना होगा और लोगों को यहाँ लाना होगा, लोगों को जोड़ना होगा। बेहमदी ताला हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, लोग मुझे जानते हैं। तो मैं इंशाअल्लाह ताला इस पर कुछ लिखूंगा भी, अपने दोस्तों से कहूँगा कि इससे जुड़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामयाबी अता फरमाए। बस एक ही चीज है कि हम इखलास के साथ जुड़े, इसका नाम होगा तब हमारा नाम। हम इससे हैं, हमसे ये नहीं है, बल्कि हम इससे हैं। ये कामयाब है तो लोग गलत फहमी में हजरत आ जाते हैं, कुछ तंजीम कोई बढ़ जाए, कुछ बड़ी हो जाए तो फिर अपने आप को बड़ा शुमार करेंगे। और जैसे अभी आपने बड़ी खूबी बताई डॉक्टर शुजात साहब की कि माशाल्लाह ये एक एक फर्द को पहचानते हैं। आप लीडर की क्वालिटी यहाँ बताई जाती हैं, बड़े बड़े लोगों को देखकर जो कुछ लिखा गया है कि लीडर में क्या खासियत होनी चाहिए, तो उनमें सबसे पहली खासियत जो बताई गई वो यही है कि वो अपने कारिंदों को, काम करने वालों को एक नजर में देख के वो बता देगी, फला ये मेरा फला आदमी फला जगह है। ये चीज मुतासिर करती है लोगों को। आप अपने पुराने दोस्त को देखें और पहचानने में जरा बगले झाँकें और सोचे क्या नाम है, तो वो सोचेगा कि यार ये क्या बंदा है। लेकिन एक बार भी कहीं किसी से मुलाकात हुई हो और जैसे ही आप देखें नाम लेके पुकारते तो वो आपसे मुतासिर हो जाएगा, इंप्रेस हो जाएगा। ये कैसा आदमी है माशाअल्लाह, कैसी नजर है और कैसा ताल्लुक है कि एक नजर पहले मुलाकात हुई थी और आज देखो मेरे नाम से मुझे पुकार। फिर जहां बुलाओगे वो आएगा, जो काम कहोगे वो करेगा। तो ये खासियत सिर्फ डॉक्टर
शुजात साहब की नहीं होनी चाहिए, हम सब के अंदर ये बात पैदा होनी चाहिए, इसलिए कि कल हम भी अपने अपने महलों और इलाकों के लीडर बनेंगे। हमें पहचानना पड़ेगा कि हम जिन लोगों को ले गए उनमें कौन कौन लोग हैं, किस खासियत के लोग हैं, किस मिजाज के लोग हैं, उनसे कैसे काम लेना है। हर एक को एक छड़ी से हम नहीं हाँक सकते, किसी को जरा प्यार से चुपकार के बुलाना होगा, किसी से अगर कभी कोई तेज आवाज में कह दिया कि क्या कर रहे हो, चलिए बैठिए, तो हो सकता है वो बर्दाश्त करे, लेकिन दूसरा नहीं बर्दाश्त कर सकता। अल्लाह से मुझे ये पता नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, मैं पहली बार हाजिर हुआ, माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि इसमें इस जैसे मामलात में कैसे गुफ्तगू की जाती है। वहाँ डॉक्टर शाहिद मिसबाई साहब हैं, डॉक्टर जफर साहब हैं, ये लोग हैं जो हम सबको सिखाएंगे, आगे गाइड कराएंगे। मैंने कुछ अशार लिखे हैं कि इधर है आँख कश्ती पर, इधर है आँख कश्ती पर, उधर गिरदाब पर भी है। कहते सब अल्लाह पर छोड़ दो, या बाज लोग ये कहते हैं कि सिर्फ हमारी अपनी मेहनत, ऐसा नहीं है, बल्कि हम कश्ती में जो सफर करते हैं तो इधर है आँख कश्ती पर, उधर गिरदाब पर, यानी जो तूफान आ रहा है, इधर है आँख कश्ती पर, उधर गिरदाब पर भी है। भरोसा है, भरोसा रब पे है, लेकिन नजर असबाब पर भी। भरोसा रब पे है लेकिन नजर असबाब पर भी है। इधर है आँख कश्ती पर, उधर गिरदाब पर भी है। भरोसा रब पे है लेकिन नजर असबाब पर भी है। और तलब मकबूल उस इंसान की होती है, तलब मकबूल उस इंसान की होती है, कदम जिसका, तलब मकबूल उस इंसान की होती है, कदम जिसका अमल के रास्ते पर और दुआ के बाब पर भी है। अमल की राह पर है और दुआ के बाब पर भी है। सिर्फ दुआ करते रहो तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अमल के रास्ते पर चलो, फिर दुआएं करो, तब इंशाअल्लाह ताला मकबूल होगा। हम बैठे हुए यहाँ खाली डिस्कस कर ले, दुआ करें, ऐसा नहीं। हमें जमीन पर उतरना पड़ेगा, अपने महल्ले की गलियों में देखना पड़ेगा कौन कौन से स्टूडेंट है, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनके घरों पे जाके, बजाय इसके कि आप कॉलेज में मिलो, उससे पहले उनके महल्लों में आप जाके मिलो। उसका असर और ज्यादा होगा कि जब कॉलेज में पहुंचेंगे तो वो महल्ले का बच्चा जिससे आप मिल चुके थे वो पढ़ के आपका इस्तेमाल करेगा और लोगों से तारुफ करवाएगा कि ये फला 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 जगह से आया। इस तरह जोड़ने में इंशाअल्लाह आसानी रहेगी। ऐसे तो होता मसलत यही हुआ कि चंद लोग आए तो उनके जरिए और लोग, उनके जरिए और अब तो हाल ये हो गया है कि चूंकि मेरे कलाम हर जगह फौरन फैल जाते हैं, तो यहाँ के जो रिश्तेदार अज़ा अक़रबा होते हैं या पाकिस्तान के, वो अपने रिश्तेदारों को जो मसकत में उनको भेजते, फिर वो उसमें नीचे नंबर देखते हैं कि फरीदी मिसबाही मसकत ओमान, और उसमें नीचे मेरा नंबर भी होता है, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो यहाँ हमारा कोई अपना ऐसा मिल गया। तो फोन आता है कि हजरत मेरे पास ये आपका कलाम है, आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? मैं बताता हूँ, तो यकीन मानिए जैसे ईद की खुशी होती है ऐसी खुशी होती है। फिर आते हैं मिलने, फिर हमारा एक ताल्लुक कायम होता है, उनके जरिए से और लोग जुड़ते हैं। ऐसे में बता रहा हूँ कि ओमान का कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहाँ के हजारों हजार लोग मुझसे जुड़े हुए ना। मैं कैपिटल में हूँ, बिल्कुल एयरपोर्ट के करीब, लेकिन हर शहर में, मैं जिस शहर में जाता हूँ, हजारों लोग एक आवाज में इकट्ठा हो जाते हैं। तो काम करने से होता है। मैं पहले दिन सोचता कि ये हो जाए तो नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, बगैर किसी नामुमकिन के काम करता रहा। ऐसे ही अगर आप काम करते रहेंगे, मैं भी इसमें साथ में जुड़ा हूँ, हजरत भी जुड़े, तो इंशाअल्लाह ताला इसमें काम में मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।